ठीक है. Right, guys, just to let you know, recording has started. So this session is now recorded. So Akash, we are all ears. So please go ahead and you know carry on with this. Thank you, Rohit sir. Thank you. So guys, can you please confirm? Am I properly audible to you? Yes, yes. Yes, Yes, yes. you are. Yes, you are. Okay. Yes. Okay. So first of all, let me tell you the agenda of this meeting. So in this meeting, you all know that I am taking care about the practical sessions, about the technical sessions, about the Salesforce, and about the SQL and all. So before we jump into the technical session and before we jump into the direct to the topic wise discussion, first of all, this agenda, the agenda of this meeting is to, uh, you know, uh, things that how a business analyst or basically on the shop floor or in a company, how a business analyst behave from zero to the end. So this meeting is all about the mixed topic. Mixed topic means to say that okay, when you land in the company, XYZ कोई सी भी अगर वो company होगी, then how a business analyst behaves, where he or she will get the requirement from the client side or basically the CTO side, और ये सारी चीजें हम लोग इस मीटिंग के अंदर अभी डिस्कस करने वाले. Okay, so before start, let me share my screen. If the screen is visible, please let me know this. Okay. I hope that my screen is Yes, visible it's to you. visible now. Okay. So moving forward, I know many of the students are from non-technical background and some of the technical background. So the very first step is to understand the business analyst. Can anyone tell me what is the difference between business analyst and business analysis? So I believe the business analysis is the process, and the business analyst is the person who perform these processes or these tasks. Okay. Anyone else? Yes, guys. Anyone else? थोड़ा सा एंगेजिंग बनाएंगे सेशन को, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन में अगर हम बात करेंगे जब तक एंगेजिंग नहीं होगा तो नहीं काम चलेगा. ठीक है. सो एवरीवन शुड टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी सेंटेंसेस. क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द थ्योरेटिकल पार्ट, तो थ्योरेटिकल पार्ट एवरीवन नोज दैट कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, व्हाट इज फिग्मा, एंड ये सबको पता है. बट हियर आई एम टेकिंग केयर अबाउट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि जब आप कंपनी में जाओ तो यू फील दैट कि ओके आई नो ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. आई एम नॉट ए फ्रेशर गाय. तो वो चीज मुझे एक जाननी है सब लोगों की साइड से. तो इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन टू यू गाइस, चाहे चाहे नहीं भी पता हो तब भी प्लीज टेक द पार्ट. ठीक है. सो फ्रॉम माय साइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिसिस एंड द बिजनेस एनालिस्ट? Like, sir, business Yeah. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. business analysis is the process like where we used to gather requirements from the stakeholders and CTOs, as you mentioned, and business stands for those particular documents which we are gathering to analyze about those documents about those documents only. ठीक है. ठीक है. एनीवन एल्स? The business analysis is the process of identifying business needs and requirement and working accordingly, while a business analyst is a person who does these processes. Correct. Correct. So when we talk about the business analyst, so business analyst is just a person. Huh. Business analyst is just a individual or a person who perform the business analysis activities. And when we talk about the business analysis activities, तो जो हम लोग पढ़ने वाले like requirement gathering or like stakeholder interviews or like process mapping or like the detailed documents like business requirement document, functional requirement document, ये सारी की सारी चीजें. So this whole curriculum is basically divided into three parts. The first part is related to the business analyst. So first of all, we are going to discuss about the business analyst things, how a business analyst work and how a business analyst behaves in front of stakeholders, in front of development team, in front of the company culture and all.
The second part is related to the Salesforce business analyst, because in Salesforce business analyst there are number of things are available. So first of all, we have to learn how a business analyst behave, then we will move towards the Salesforce business analyst, because in Salesforce business analyst there are a lot of terminologies, a lot of curriculum as well. So वो हम लोग अभी second part पे करेंगे. And the third part is related to the more about the technical part, that is related to the SQL. ऐसा नहीं है technical business analyst में भी technical चीजें हैं, तो वो I will discuss each and everything. Okay, so first of all, the second part is related to the company departments. How many of you know that in IT company, how many departments are there? And as a business analyst, when you will get a job, so आप कौन से department में जाओगे? How many departments are there in the IT sector, IT company basically? मैं अभी IT की बात कर रहा हूँ. किसी को पता है यहाँ पे कुछ? सर Not like all. डेवलपर साइड हो गया, दूसरा टेस्टिंग साइड का हो गया. ठीक है, डेवलपर साइड हो गया, टेस्टिंग साइड हो गया, ठीक है, और क्या, और कौन कौन से डिपार्टमेंट है? बिकॉज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस यस, finance, HR, ठीक है, और क्या पता operations, है? ठीक है, और क्या पता है? Project management office. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, और Akash, Business marketing process team, management. sales team. Business number process of- management. ठीक है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, गुड. Product Next. management. प्रोडक्ट मैनेजमेंट, Client Designing account team. management. ठीक है, देखो, when we talk to about the departments in the IT sector, पहली बात तो ये क्वेश्चन मैंने करा ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, तो फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, तो व्हेन यू विल लैंड इन द कंपनी ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज देखनी ना पड़े कि मुझे जाना कहाँ पे है, वो चीज हमें पहले ही पता लग जाए कि ओके दिस इज अवर डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम देयर और फ्रॉम वेयर वी गॉट द थिंग्स, अब मुझे कहाँ पे क्या क्या करना है. So in IT sector, there are number of departments are available, but majorly the IT sector is basically divided into two parts. ठीक है, बाकी हम वो फाइनेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, मेजरली अपनी चीजों की बात कर रहे हैं. The very first part is the management department. Yes. एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है और एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा. Yes guys. Development department consists of front-end developers, back-end developers, testers, project managers, है ना. तो ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आएंगे. जैसे हमारे पास फ्रंट-एंड डेवलपर्स, बैक-एंड डेवलपर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है, ये सारे के सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं. सॉरी. Okay, all right. And when we talked about the management department, then in management department, किसी को पता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है? HR, ठीक है, चलो HR ले लेते हैं. नेक्स्ट, marketing team, sales team. सेल्स टीम. कौन आता है? सेल्स टीम. ठीक है भाई, बहुत सारे आते हैं. When we talked about the sales team हो गए, CTO हो गए, CEO हो गए, COO हो गए, CFO हो गए, तो जितने भी CIO. ऑफिसर ग्रेड्स लेवल हैं वो सारे के सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं. एंड ऑल्सो द सेल्स टीम, GM. एंड इन सेल्स टीम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द many parts. So as a business analyst, when you will in the company, तो आपको जैसे अभी हमने बोला है कि business analyst is take care about the client requirement, business analyst is gather the client requirement, creates documentation and ensure that कि development जो टीम है वो उसको अच्छे से बनाए, है ना. तो यहाँ पे जो भी एक business analyst होगा, मैं एक आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल वे में, मैं अभी कंपनी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, and that's also depend upon the company culture and all, वो सारे company culture पे depend करता है, but here I am talking about the in general or in the layman language. So as a business analyst, where from you got the requirement, because as a business analyst you have to interact with the client ना, you have to take care about the meetings, you have to understand what is the pain point from the customer side. यही responsibility है, yes or no?
These are the Yes. responsibilities ना, है ना? तो Yes. अगर यही Yes. responsibility है as a business analyst, you are taking care about the client requirement, you are taking care about the client pain points, you are taking care about the document. वो अभी पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे कि हम लोग क्या क्या करेंगे. So where from you got the requirement? आपको कैसे पता लगेगा कि okay, I have a meeting at 4, I have a meeting at 5. Who is the responsible Sales person? team. Sales team. सेल्स टीम. ठीक है, सेल्स टीम. अब अगर मैं सेल्स टीम की बात करता हूँ, सो सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस एनालिस्ट होते हैं. अभी हम लोग सेल्स टीम के कैटेगरी पे अभी बाद में आएंगे. एक प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट होता है, एक पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट होता है. ये सर नो नहीं पता है, मैं बता Yes, देता हूँ. Akash. ठीक है. Yes. तो कहीं पे जब जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन यू आर ऑन द लाइक जब आप जॉब पे अप्लाई करोगे या फिर सारी चीजें देखोगे, तो वहां पे कहीं कहीं लिखा हुआ है द डेजिग्नेशन इज द प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट या कंपनी वांट्स ए पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट. तो इस तरीके की चीजें आएंगी. ठीक है. या फिर कहीं कहीं जगह ये भी लिखा आता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन, वो भी अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कौन कौन सी डेजिग्नेशन होती है. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट एंड द पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट. सो दो बिजनेस एनालिस्ट अभी हम डिफाइन करेंगे. एक तो होता है प्री सेल्स और एक हमारा होता है पोस्ट सेल्स. ठीक है. ये बिजनेस एनालिस्ट, प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट इज टेक केयर अबाउट द, यस, एनीवन एल्स? नो. व्हाट अबाउट प्री Generating सेल्स leads. बिजनेस एनालिस्ट? सॉरी. Generating the leads. हाँ, नहीं, जनरेटेड लीड नहीं होता है. Akash, I think pre-sales business analysts gather requirements like what needs to be done, what is the requirement of the client, these all things. Correct. Pre-sales business analyst is take care about the client meetings, take care about the agendas, take care about the documentation part, take care about the designing part. Means to pre-sales business analyst is totally and totally involving in the full software development life cycle, excluded the maintenance part. अभी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे किस तरीके से वो बिहेव करती है. सो प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सारी की सारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई, सब कुछ XYZ वो हैंडल करेगा. बट वंस द वेबसाइट और बेसिकली द क्लाइंट रिक्वायरमेंट इज डिप्लॉयड एट द डोर स्टेप टू द क्लाइंट, जब उसको उसकी वेबसाइट मिल गई, जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट मिल गई, लेट्स सपोज कंपनी के एंड से, देन आफ्टर दैट इफ द क्लाइंट फेसेस ए बग, if the client faces a कि यार ये ना ठीक से नहीं चल रहा है, then who is the responsible person to take care about that thing? Post sales business analyst. Post-sales business analyst. ठीक है. यहाँ पे क्या रहता है, दो चीजें हैं. If the company is too small, then project manager is taking care about the bug fixing after the maintenance or after the deployment. ठीक है. एक बार मेंटेनेंस भी खत्म हो जाती है, that is depending upon the service legal agreement, जो एग्रीमेंट में वहां पे चीजें लिखी रहती है, वो चीजें होती है. ठीक है. सो आई होप दैट एवरीवन क्लियर द प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट कौन होते हैं एंड पोस्ट सेल बिजनेस एनालिस्ट कौन होते हैं. Yes, Akash. एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? No. ठीक है, ग्रेट. तो अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा सेल्स टीम में. देखो, सेल्स टीम्स में आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज इन द मार्केट. So we have different types of companies. The first company is related to the service based company or the solution based companies, and the second is the product based company, and third is the hybrid model company. ठीक है. So when we talk to about the sales team, अभी उन तीनों की हम लोग अभी थोड़ा सा बाद में बात करेंगे. सर्विस बेस्ड हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, या फिर हमारा हाइब्रिड मॉडल हो गया. सेल्स टीम में कौन कौन बंदे होंगे? सेल्स टीम में कौन कौन होगा? Sir, business development managers, BDMs, and marketing team. ठीक है. BDMs, BDs, BDMs, account managers, Client these partners. are अकाउंट मैनेजर को अभी हम लोग नहीं ला रहे, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं ना. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, उनको थोड़ा साइड में रखते हैं. तो हमारे पास कौन होंगे? BDMs होंगे, BDEs होंगे, ABM भी होगा, BM भी होगा,
और कौन होगा? और कोई मुझे बता सकता है? CTO. सीटीओ वो ऑफिसर लेवल ग्रेड के आ गए, उनको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, मार्केटिंग, मार्केटिंग ठीक है, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं, राइट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट भी ले सकते हैं क्या? नहीं, प्रिक्योरमेंट नहीं, अभी प्रोक्योरमेंट नहीं ले सकते। जो एज ए बिजनेस एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं खाली, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यार, है राइट, ना, फिर तो डिपार्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर, फ्री बन जाएगा। सॉरी, रिलेशनशिप मैनेजर, हाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी रहते हैं। तो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले BDM, BDM is denotes to business development manager and BD is denotes to business development executives. Business development executive is responsible to, किसी को पता है? Yes or no? जो टेक्निकल वाले लोग हैं यहाँ पे, generate the leads for the जनरेट BDM. द लीड्स, करेक्ट, जनरेट द लीड्स, ठीक है। एक कंपनी के अंदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है, तो उस कंपनी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आर देयर, ऑलमोस्ट 20-30, डिपेंड अपॉन द कंपनी साइज, एंड दीज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू जनरेट द हाई क्वालिटी लीड्स। और उन लीड्स में क्या होगा, उन लीड्स में डिपेंड अपॉन द क्लाइंट कि उसको क्या चाहिए, उसको वेबसाइट चाहिए, उसको मोबाइल ऐप बनवाना है, या उसको जो भी बनवाना है। सो आई होप दैट इतनी चीजें क्लियर हुई होगी कि अंडर द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स आर देयर, एंड द सेकंड नेम ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज बीडर्स। क्या बोलते हैं? बीडर्स, ठीक है। सो हमारी कंपनी है, उसके अंदर सेल्स टीम है, उस सेल्स टीम के अंदर देयर इज द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? these all are responsible to generate the leads, है ना। अब वो लीड्स कुछ भी हो सकती है, द लीड्स मे बी वेबसाइट डेवलपमेंट, मे बी CMS डेवलपमेंट, मे बी शॉपिफाई डेवलपमेंट, मे बी कस्टम डेवलपमेंट, मे बी ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। सो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द लीड, तो लीड इनके पास आ गया, लेट्स सपोज। सो देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल है, लाइक गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, या फिर जो हमारे फ्रीलांसर्स के प्लेटफॉर्म्स हो गए, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट प्लेटफॉर्म्स, these all are responsible to generate the high quality of leads from the US, from different countries. तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पे, बिडर ने क्या करेगा, बिडर क्या करेगा? मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डीप डाइव करना चाहता हूँ, मैं अपवर्क को ले लेता हूँ। व्हाट इज अपवर्क? अपवर्क क्या है, किसी को पता है यहाँ पे? I guess it's a co-working space. इट इज ए It's a site that offers remote work or freelancing. It is a site. It is basically the centralized site where जो हमारे वर्कर्स हैं या जो हमारी कंपनीज हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बीच का एक प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन, just like business analyst. So business analyst is bridge between the external stakeholders and internal stakeholders, same as it is Upwork or the freelancing platforms is just like a bridge between the clients और हाई पोटेंशियल क्लाइंट्स। जैसे कि आई नीड ए प्रॉपर वेबसाइट, ठीक है, और मुझे जो है डेवलपर चाहिए, तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा। दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज रिलेटेड टू SEO एज वेल, वो भी बाद में देखेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। सो अपवर्क आगे। सो तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? हाई क्वालिटी लीड को यहाँ पे सर्च करेंगे, and the very first document come up over here that is known as the RFP. RFP means request for proposal. तो ये लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे बाद में, जब डॉक्यूमेंट हम लोग पढ़ रहे होंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, स्कोप ऑफ वर्क, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जब डॉक्यूमेंटेशन वाला लेक्चर पढ़ रहे होंगे, सो
उसमें हम लोग सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे. सो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव will first of all find the proper requirement according to the company capabilities or according to the SWOT analysis. जो भी CTOs या CEOs हो गए वो उनको बताते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ये वाले सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक पाइथन के रिसोर्स अवेलेबल हैं और ब्लॉकचेन के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. सो प्लीज डू द बिडिंग ऑन द किस पे, जो भी फ्री रिसोर्सेज है पाइथन पे कर लो या फिर ब्लॉकचेन पे कर लो. अब ये सारे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को शेयर करेंगे इनके साथ. व्हेन क्लाइंट रिवर्ट टू द बीडी, दैट्स नोन एज द लीड. अब वहां पे लीड आ गई है. अब लीड आने का मतलब क्या है, लीड आने का मतलब क्या है, वो लीड किसके पास जाएगी? अब पीडीएम के पास. किसके पास जाएगी? ईडीएम के पास. पीडीएम. के ठीक है, बीडीएम के पास चली गई, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इज वर्किंग अंडर बीडीएम. तो ठीक है, वो बीडीएम के पास चली गई. इन्होंने क्या करा, इनको इन्फॉर्म कर दिया कि आई गॉट वन लीड. बीडीएम के पास कहां से जाएगी? बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है ना, फिर इसके बाद कहां से जाएगी? बीए के पास. पीए के पास. So I hope that the question is clear now. Where from BA got the requirement? This is the first option. अगर कंपनी का ये कल्चर है, जो कि नंबर ऑफ कंपनी का यही कल्चर रहता है, तो यहाँ से बीए के पास क्या ये रिक्वायरमेंट आएगी. अब ये एक ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस और हैं. डायरेक्ट सीटीए भी दे सकते हैं, सीईओ भी दे सकते हैं, वो दैट इज डिपेंड अपॉन. बट मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि इस सिनेरियो में काम होता है कंपनी के अंदर. So when you land in the company, then you feel that कि okay, I know कि कौन मुझे रिक्वायरमेंट देगा. ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? यस. देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ. इन बिजनेस एनालिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी डिपार्टमेंट और इन एवरी डेजिग्नेशन के साथ. ठीक है, क्योंकि BA इज बेसिकली द एक वो बंदा है जो कि क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ टाइप होगा, है ना. वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ भी टाइप रहेगा, डेवलपर के साथ भी, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, टेस्टर हो गया, PM हो गया, PO हो गया, CTO हो गया, सबके साथ वो टाइप रहेगा. सो जब वो सबके साथ टाइप रहेगा, सो मेक श्योर दैट एज ए BA यू हैव टू नो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन के साथ. जस्ट लाइक टेस्टिंग, जस्ट लाइक हमारे पास डेवलपर्स, तो बहुत सारे चीजें आती है, बहुत सारे मिथ्स आएंगे अभी आगे जो मैं रिजॉल्व करूंगा सारे के सारे. सो आई होप दैट इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कहां से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है. अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग? Let's suppose that in a company you got the requirement from the bidder side or from the BDM side. अब क्या करोगे आप? What is your next step as a BA? As a BA, we'll first have a meeting with the client to understand his requirements, his needs, Correct. what he really needs. अब रिक्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है? What comes under the requirement? सोचो. Akash, it is like what are the problems they're facing and what are the like solutions which we can deliver for that, I guess. ठीक है. So infinite requirements are there. Like some clients wants a proper new website from scratch. किसी के पास already existing website है, but he or she is facing some kinds of problems. So कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब रिक्वायरमेंट आया, रिक्वायरमेंट आने के बाद यहाँ पे let's suppose that the requirement is technical. So are you able to handle the technical requirement? Yes or no? Let's suppose client पूरा technical है. Client No, wants Akash. it. No. तब क्या करोगे आप लोग? In that case, Akash, we'll go to the developer side, to the designers, front-end designers, back-end developers, to see if it is feasible, if we can do it or not. Like, what is the solution? How we can deliver that thing? Let's suppose that you got the requirement from the bidder side. Now the meeting is almost 5 PM today. आज 5 बजे जो है वो मीटिंग है.
अब आपने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ ली, बिकॉज दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो if you are a functional business analyst, technical business analyst, lead business analyst, that the requirement is totally depending upon you. Are you able to handle the requirement individually or not? If not, then the very first step is to discuss this requirement with the project manager, not directly developer, not directly designer, not directly front end or back end developer. Clear? So in company there are different project managers are available depending upon the technologies. ठीक है, क्या वो कस्टम है, ठीक है, क्या वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, क्या वो सीएमएस से रिलेटेड है, वो किस चीज से रिलेटेड है रिक्वायरमेंट, तो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे ऑलरेडी. ठीक है, यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग के द रिक्वायरमेंट इज ब्लॉकचेन. अगर रिक्वायरमेंट ब्लॉकचेन की है तो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, या हु इज टेकिंग केयर अबाउट द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इन दिस कंपनी, ये चीज कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा ये चीज? प्रोजेक्ट मैनेजर. नहीं, Project manager will आपके रिपोर्टिंग मैनेजर जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो, आरएम, जो भी आरएम होगा, आरएम इज द वन हु जस्ट टेक केयर अबाउट योर ऑल प्रॉब्लम्स. आप फिजिबिलिटी एनालिसिस भी उसी से पूछोगे, बताऊंगा फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है. तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई. इफ द रिक्वायरमेंट इज प्योर टेक्निकल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि आई एम हैंडल दिस रिक्वायरमेंट और नॉट, मैं कर पाऊंगा, करूंगा, क्या कैसे कैसे क्या है. अगर नहीं कर सकते देन फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द बोर्ड रूम, कॉल प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके बात करो एंड उसको बोलो कि मेरे 5 बजे मीटिंग है एंड क्लाइंट इज टॉप प्योर टेक्निकल, और टेक्निकल के साथ जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बताने पड़ेंगे. एंड इन द मीटिंग लेट सपोज 4 पीपल्स आर देयर. एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2 क्लाइंट है, एक बीए है. इन सब में लीड कौन करेगा? हु इज द लीडर? बीए इज द लीडर. ध्यान रखना, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, डजंट टेक केयर. बीए इज द लीडर ऑफ द मीटिंग. बीए इज लीड द मीटिंग बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीए. और इस मीटिंग के अंदर 90% of the company wants a proper or separate discussion. कौन सा डिस्कशन? कॉस्ट रिलेटेड डिस्कशन. कि जो बीए है, ठीक है, पीएम को आप, पीएम हो गए, डेवलपर्स होगा, आप इनको थोड़ा मीटिंग से आउट कर देना. एंड आउट करने के बाद वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटेड टू द कॉस्ट एस्टिमेशन, रिलेटेड टू द पैसे से रिलेटेड, वो सिर्फ आप करोगे. वहां पे डेवलपमेंट टीम इन्वॉल्व नहीं होगी. So I hope that cost estimation will be our part. Means इसमें project manager का कोई role नहीं है. Cost estimation is totally depending upon the number of hours to complete the project. So once the meeting is done and you already have an idea कि भाई उसको चाहिए क्या, then after आप क्या करोगे, वहाँ feasibility analysis करोगे. सबसे पहली बात, feasibility analysis करने के बाद आप पीएम से पूछोगे कि इसमें, इसको करने में कितने घंटे लगेंगे, and on the behalf of number of hours तब आप cost estimation निकालोगे. Cost estimation is your roles responsibility. वो मैं बताऊंगा कैसे हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं चीजों का. ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें? तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है. द टॉपिक इज रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. तो हम वो पढ़ेंगे बाद में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. ठीक है, सो अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमें बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. और उन स्टेप्स को हम लोग बोल रहे हैं SDLC, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल requirement gathering and requirement elicitation. The second step is related to planning and analysis. The third step is related to the designing. The fourth step is related to the development, and the fifth step is related to the हमारे पास deployment. Then उसके बाद maintenance. आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट इस पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अराउंड ही घूमते रहोगे, एंड इसी के अंदर सारी चीजें हैं. सारी चीजें इसी के अंदर है. हम लोग डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा सारी चीजें क्या है. बट आई होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्हेन यू गाइज लैंड इन द कंपनी देन आपको रिक्वायरमेंट कौन देगा.
ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट किस Akash. तरीके से क्या होते हैं। अब वो देखो, ये एक ठीक जो मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। शायद आपकी कंपनी के अंदर बीडीज ना हो, है ना, शायद आपकी कंपनी के अंदर बीडीएम ना हो, वो CTO इज टेक केयर अबाउट द रिक्वायरमेंट, CTO इज टेक केयर अबाउट द लीड जनरेशन, वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग। बट हाँ 90% केसेस में ऐसी फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे वंस द मीटिंग इज ओवर, मीटिंग ओवर होने के बाद, एज आई टोल्ड यू दैट, मीटिंग ओवर होने के बाद यू एज ए बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू सेंड द MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। किसको भेजोगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग भी तो भेजोगे ना, कि मीटिंग में हुआ क्या है, किसको जानना है ये? Manager. योर मैनेजर, योर Reporting रिपोर्टिंग manager. मैनेजर, योर CEO, योर CTO। एक्चुअली क्या होता है कि इन कंपनी टू हैंडल द माइक्रो मैनेजमेंट और टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, MS टीम्स ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल द टेक्निकल क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट साइड इन द मीटिंग, देन बिफोर द मीटिंग you have to send in proper message in the MS Teams group where your reporting manager is there or the project manager is there। वो सारे लोग वहां पे होंगे ताकि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को भी पता चल सके कि हाँ जो BA है वो क्या कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम लोग अभी और डिटेल में समझेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग को, बिकॉज इन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग देयर आल्सो 3 पार्ट्स आर देयर, द प्री रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन एंड द पोस्ट रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन। ये कैसे कैसे हम लोग करते हैं, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वंस द मीटिंग इज ओवर, उसके बाद MOM जो है, यू हैव टू सेंड द MOM टू द रिपोर्टिंग मैनेजर, जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है। एंड आफ्टर दैट once the MOM sent, then after that the second step as a business analyst you have to do the meeting in the boardroom where project managers or CTO, डिपेंड करता है CTO अवेलेबल है कि नहीं है, वैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से ही होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर टेक केयर करता है कि हम इस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे, आर वी एबल टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो इसको हम लोग बोलते हैं FA। FA इज रिलेटेड टू फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगर देखो मीटिंग के बाद लेट्स सपोज दैट आप क्लाइंट हो, ठीक है, और मैं BA हूं, तो जब पूरी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड यू एज ए बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, सॉरी यू एज ए क्लाइंट, आपने पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे बता दी, देन आफ्टर दैट आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे क्या मांगोगे? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगोगे कि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। आई वॉन्ट ए प्रॉपर कॉस्ट एस्टिमेशन, आई वॉन्ट ए प्रॉपर टाइमलाइंस कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, या कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। सो जब फिजिबिलिटी एनालिसिस हो रहा होता है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। क्या हम बना पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या है हमारे पास, वो चीज हम प्रोजेक्ट में, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, वही करते हैं। हम उनसे सिर्फ वो ले सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिजिबिलिटी एक बार 2 सिनेरियो होंगे, या तो नेगेटिव जाएगा या फिर पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव जाएगा तो क्या करोगे? Changes. नेगेटिव सिनेरियो जाएगा तो क्या करोगे? नेगेटिव मींस नो, वी आर नॉट एबल टू डेवलप। Sir, then we will inform the senior head that we don't have sufficient resources for this particular development or anything. We'll And hire more people. sufficient things we don't have, like which developer or which person we don't have. लेकिन क्लाइंट को भी यही बोलोगे? नहीं सर, Akash, I have a doubt. हाँ जी, yes please. Like you said about cost analysis, so like we only need to create it. Like we'll be having an idea how much it will cost us for the project, or someone will be helping us with that. हाँ, Like- project manager will help you, no? Okay. Only Okay. in number of hours. Let's suppose that if मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, I have one project related to e-commerce. Okay. Okay. And when you are going to discuss about the timelines or about the number of hours to complete this project, then project manager say that कि okay, हम in 400 hours पे इसको complete कर देंगे, ठीक है, 4
100 आवर्स में, लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी अगर सीएमएस का कोई प्रोजेक्ट है तो बताऊंगा सीएमएस भी क्या होता है। इतनी देर से मैं सीएमएस बोलूँ, किसी ने पूछा नहीं सीएमएस क्या होता है, बट कोई बात नहीं, बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज ई कॉमर्स का एक कोई प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स के या फिर रियल एस्टेट के कुछ भी ऐसा, तो वो 40 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है कि आई नीड 400 आवर्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, this is your roles and responsibility to ask the bifurcation of this 400 hours, to ask about the resources कि कितने resources लगेंगे, कितने बैकएंड डेवलपर लगेंगे, कितने फ्रंट एंड डेवलपर लगेंगे, कितने टेस्टर्स लगेंगे, आपका काम क्या है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे बाइफर्गेशन चलेगा, ठीक है। लेट सपोज दैट इसने बोला कि एक ही बैकएंड डेवलपर लगेगा, ठीक है, एंड बैकएंड डेवलपर नीड 200 आवर्स लेट सपोज टू कंप्लीट द बैकएंड पार्ट। तो अब यहाँ पे एट दिस मोमेंट एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द रेट ऑफ ए बैकएंड डेवलपर इन दिस कंपनी, क्योंकि हम लोग चार्ज जो है वो पर आवर करते हैं, यानी 1 घंटे का हम लोग चार्ज करते हैं, और दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट फिक्स्ड है तो वहां पे आवरली चार्ज नहीं करते, अगर वो आवरली रेट पे है तो हम आवरली चार्ज करते हैं। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू ऑलरेडी नो दैट कि बैकएंड डेवलपर रेट्स इज $20 पर आवर, तो आप यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। तो इसी तरीके से जब आप बोर्ड रूम में बैठोगे तो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपको सारी चीजें बताएंगे कि अच्छा इसको 200 घंटे लगेंगे, या फिर हमारे पास जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको इतने घंटे लगेंगे, एंड डिपेंड अपॉन द स्किल एंड डिपेंड अपॉन द डेजिग्नेशन, ठीक है। ये सारे के सारे रेट्स अलग होते हैं, बैकएंड डेवलपर का अलग होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का अलग होता है, टेस्टर का अलग होता है, डिजाइनर का, सबके अलग अलग रेट्स होते हैं। तो कभी कभी क्लाइंट्स वांट्स ओनली वन रिसोर्स, कि मुझे वन रिसोर्स चाहिए, एक रिसोर्स मुझे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एक टेस्टर, दैट्स इट, और कोई नहीं चाहिए। तो कभी ये भी होता है। सो दैट इज डिपेंडिंग। क्लियर? Akash, this rate sheet which you discussed, is it available all across the organization, or only BA will have the access? Only sales team will have this access. Sales teams, okay. अब एक चीज यहाँ पे और आ जाती है, ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है ना, ये कॉस्ट एस्टिमेशन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द BDE प्रोफाइल। लेट्स सपोज दैट कि एक पर्सन है एक्सेल, ठीक है, और एक्सेल की पूरी प्रोफाइल है अपवर्क पे, उसका फोटो लगा हुआ है एंड उसकी स्किल्स वगैरह सब लिखी है। तो आपने देखा होगा, यू ऑलरेडी नो दैट कि इन अपवर्क या पीपल पर आवर या फ्रीलांसर देयर इज अ रेट मेंशन इन द प्रोफाइल कि $20 पर आवर पे मैं काम करूंगा। हाँ, Yes, it's mentioned. सो जिस प्रोफाइल से, ऑन विच प्रोफाइल एक्सेल जिससे बिड कर रहा होगा वो क्लाइंट के पास चली जाएगी ना। अब क्लाइंट के पास जाएगी तो क्लाइंट ऑलरेडी वो रेट देखेगा, तो उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। सो 400 इंटू 20, 8000, यानी वो 8000 का प्रोजेक्ट होगा। और जहां पे नहीं पता लगता, जहां पे प्रोजेक्ट ही प्रॉपर पूरा कस्टम है, वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द थिंग्स, हमें छोटी छोटी चीजें निकालनी पड़ेंगी, मॉड्यूल्स निकालने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, वहां पे फिर पूरा शीट वगैरह पूरा इस तरीके से जाता है। क्लियर हुआ? Yes, Any doubt? Akash. Yes. ठीक है। हाँ, हम फिजिबिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे थे। निगेटिव आया तो आपको प्रॉपर एक मेल शेयर कर देना है, अगर पॉजिटिव आया तो क्या करोगे? पॉजिटिव आया तो क्या करोगे? सर पॉजिटिव आया तो फिर हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज वगैरह जो लगेंगे उनके लिए प्रॉपर मेल करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे ना। हाँ जी सर। So very first step of a business analyst to do the requirement gathering with the help of requirement elicitation techniques. उसके बाद the second step is documentation. अब इस documentation में हम लोग BRD हो गया, FRD हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे।
बनाने, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनते हैं, एंड इन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट कंटेंट क्या रहता है, इंडेक्स क्या रहता है, एंड हाउ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. व्हाट अबाउट बीआरडी, व्हाट अबाउट एफआरडी, बनेंगे कब, कौन बनाएगा, किस सीक्वेंस में बनेंगे, क्या होगा. ठीक है. वंस डॉक्यूमेंटेशन इज डन, लेट सपोज क्लाइंट ने मांगा आई नीड ए प्रॉपर बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या आई नीड ए प्रॉपर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, तो बीए बनाएगा उसको बैठ के. ठीक है, पूरा बनाएगा. बनाने के बाद डॉक्यूमेंट कहाँ सेंड करेगा, क्लाइंट के पास सेंड करेगा. अब जो क्लाइंट के पास सेंड करेगा, देन क्लाइंट विल रीड इट, अपडेट इट, एंड ईच एंड एवरीथिंग वो पढ़ेगा सारी चीजें, एंड वो सेंड बैक टू द बीए. बीए फिर उसको रीड आउट करेगा कि ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है कि नहीं है क्लाइंट की तरफ से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट ए प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट, सो यू ऑल नो दैट कि इन ई कॉमर्स वेबसाइट देयर इज ए नंबर ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर देयर. लॉगिन होता है, रजिस्टर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो क्या वहाँ पे वो मेंशन हुई है, एंड व्हाट अबाउट द टाइमलाइन मेंशन हुआ है, व्हाट अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन मेंशन हुआ है. सारी चीजें अगर मेंशन है, कुछ इधर उधर है, तो क्लाइंट जो है उसको अपडेट करेगा एंड सेंड बैक टू द बीए, एंड फिर दोबारा उसको रिक्वेस्ट करेगा मीटिंग के लिए, तो फिर मीटिंग स्टार्ट होगी. तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी मीटिंग जो है वो चलती रहेंगी. एट द एंड व्हेन क्लाइंट विल गिव द ग्रीन सिग्नल कि ओके आई एम गुड टू गो, आई एम गुड टू गो विद ईच एंड एवरीथिंग, प्लीज स्टार्ट माय प्रोजेक्ट. तो द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या हुआ, खत्म हो गया. No. बताओ. नो. नहीं हुआ अभी. वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड तक चलती रहती है, गैदरिंग चलती रहेगी. ठीक है, फीडबैक्स चलते रहेंगे, वो चलती रहेगी. देन द सेकंड पार्ट क्या आएगा, प्लानिंग एंड एनालिसिस. सेकंड पार्ट तो यही आएगा ना, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीजें बन गया है, चलो अब प्लान करते हैं इस चीज को. नाउ इन प्लानिंग एंड एनालिसिस, यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग एंड एनालिसिस में हम लोग कुछ चीजों का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वी ऑलरेडी नो दैट हमारे पास 6 स्टेप है, एंड विद द हेल्प ऑफ 6 स्टेप वी आर गोइंग टू डेवलप एंड डिप्लॉय द प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट. ये जो डेवलप एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट है, दैट डेवलप एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज. के करना कैसे है, क्या एक साथ सारा करना है या एक एक करके करना है. एक एक इस ये कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हमारे पास पहले एक काम करो, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके डाल दो, पूरे प्रोजेक्ट की. फिर उसके बाद प्लानिंग एंड एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद डिजाइनिंग करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे. अगर एक बार डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई, देन यू कैन नॉट एबल टू गो बैक एंड डू द प्लानिंग एंड एनालिसिस. एक बार डेवलपमेंट हो गया, देन यू कैन नॉट एबल टू गो बैक टू डू द चेंजेस इन द डिजाइनिंग फील्ड. तो ये इस तरीके के बहुत सारे मैथोडोलॉजीज हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारी मैथोडोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, लाइक एजाइल मैथोडोलॉजी, वाटरफॉल मैथोडोलॉजी, बिग बैंग मैथोडोलॉजी, स्पाइरल मैथोडोलॉजी, बहुत सारे मॉडल्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं. तो इन द कंपनी अभी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास दो ही मैथोडोलॉजी ज्यादा यूज होती है. द वेरी फर्स्ट मैथोडोलॉजी इज वाटरफॉल मैथोडोलॉजी एंड एजाइल मैथोडोलॉजी, एंड इन दोनों में भी 95% एजाइल मैथोडोलॉजी यूज होती है. सो you as a future business analyst you have two options. या तो आप कंपनी में किसी को रिप्लेस करोगे, ठीक है, कोई पहले से बीए होगा, आप उसको रिप्लेस करके खुद वहां पे आ रहे हो. एंड द सेकंड पार्ट इज दैट कि कुछ कंपनी जो है they want a proper business analyst who know about the agile environment, who just know each and everything in the agile environment, and the company wants कि BA आए और उस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे. तो ये दो सिनेरियो आपके साथ होंगे इन द फ्यूचर जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेथोडोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे. वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है, एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है, मेथोडोलॉजी है. और इन मेथोडोलॉजीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फ्रेमवर्क. Where we align how to frame the actual task. Sir, where we write code. सीक्वेंस वाइज मेंशन करना, वन बाय वन, लाइक पॉइंट्स होंगे, उनके सब पॉइंट्स होंगे, देन डिटेल में लिखा होगा. फ्रेमवर्क कैन बी.
अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन का। मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, और मुझे वो बार बार वही एप्लीकेशन लिखनी है। द एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू, लेट्स सपोज कल को मुझे छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेशन की ऊपर की कुछ चीजें होती होंगी, देन बॉडी होती होगी, और देन नीचे का कुछ होता होगा, यही होता है ना? Yes. ठीक है, ये होता है। फ्रेमवर्क में अगर फ्रेमवर्क नहीं है तो मुझे हर एक चीज अपने हाथ से मेंशन करनी पड़ेगी, जी। हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। बट फ्रेमवर्क में क्या होगा, ये वाली सारी चीजें जो कॉमन चीजें हैं वो तो लिखी रहेंगी, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी में चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क इज जस्ट लाइक ए, क्या हुआ, प्री डिफाइंड टेम्पलेट। जैसे अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो बॉयलर प्लेट। तो अगर कोई भी विजुअल स्टूडियो में कोई भी एक बटन दबाओगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता हो जाता है, बॉयलर प्लेट आ जाती है। देन उसके बाद बॉडी में आप कोड मेंशन करते रहो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेमवर्क बताया है, ठीक है। सो फ्रेमवर्क एजाइल में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्क्रम इज द फ्रेमवर्क जो बहुत ही वाइडली यूज होता है, वो हम लोग सीखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल में कि हाउ स्क्रम और वर्क, ठीक है। कैनबन होता है, स्क्रम बन होता है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रेमवर्क हम लोग क्या करेंगे, फीचर की डेवलपमेंट करेंगे, फीचर की डिजाइनिंग करेंगे, फीचर को डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें करेंगे, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। सो ये सारा का सारा चीज कहाँ पे आ रहा है, ये कौन सी चीज में आ रहा है, स्क्रम हुआ, एजाइल मेथोडोलॉजी हुआ, ठीक है, कुछ हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन हो गया लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड ऑल, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेप में आए, डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस। प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर में आए। देन प्लानिंग एंड एनालिसिस के बाद क्या होता है, द थर्ड स्टेप इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग। डिजाइनिंग। So in the designing, what is the roles and responsibility of a business analyst? To take care about the blueprint, to take care about the wireframes, to take care about the prototyping. तो इन डिजाइनिंग में भी अलग अलग चीजें होती हैं विद द हेल्प ऑफ फिग्मा, जो कि टूल का नाम है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉल्सैमिक और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है ना। तो वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिजाइनिंग के पार्ट में कि लो फिडेलिटी डायग्राम क्या होता है, हाई फिडेलिटी, वो आप कैसे बनाओगे। अब बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, वंस क्लाइंट गिव यू द ग्रीन सिग्नल कि ओके दिस इज ओके, देन यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट सेंड दिस द वायर फ्रेम टू द यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो यहाँ पे लो फिडेलिटी डायग्राम हो गया, हाई फिडेलिटी डायग्राम हो गया, है ना, दो चीज होंगी। सो फ्रॉम द लो फिडेलिटी डायग्राम पर्सपेक्टिव बीबीए इज टेक केयर, जो कि ब्लूप्रिंट बनाएगा सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी। देन वंस क्लाइंट इसको अप्रूव कर देगा, देन वो क्या करेगा, उसको यूआई यूएक्स पे छोड़ देगा पूरा का पूरा, जो बिल्कुल हाई फिडेलिटी डायग्राम बनाएगा, बिल्कुल एज इट इज बनाएगा जैसा दिखेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्वेश्चन, यस यस प्लीज। सो आप ये प्लानिंग फेज में अगर हम, इफ इट इज अ न्यू प्रोजेक्ट, तो प्लानिंग फेज में हम क्लाइंट को आरएफआई आरएफपी ये सब प्रोवाइड करके वी गेट द आइडिया कि हमें क्या बनाना है, एंड देन जब डिजाइनिंग, प्लानिंग फेज में आरएफआई आरएफपी सेंड नहीं करते, That is इनिशियल for- फेज में करते हैं, जब मीटिंग खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल Right. इनिशियल फेज है। प्लानिंग फेज में तो- हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं। ओके, हाँ। सो वंस वी गेट द आइडिया कि हमें क्या बनाना है, तो उस अकॉर्डिंग हम वायर फ्रेम या मॉकअप या प्रोटोटाइप बनाकर क्लाइंट को देते हैं, राइट? करेक्ट। तो उस केस में वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना कि हम तुरंत में उनको वायर फ्रेम या मॉकअप बनाकर दे दे, कि दे विल गिव अस टाइम कि गो एंड स्टडी अबाउट द प्रोजेक्ट एंड देन गिव अस द वायर फ्रेम्स मॉकअप्स। हाँ, वो आराम से मिलेगा। You have as a business analyst, you have sufficient time to create each and everything. कोई जल्दी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। Then moving forward to the next point that is known as the development. डेवलपमेंट में सारा का सारा काम कौन करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। समटाइम्स BAs take care about the API, sometimes BA take care about the API documentation and all. वो कुछ कंपनी में डिपेंड करता है, वरना अधिकतर ऑलमोस्ट इन द डेवलपमेंट साइड फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर विल टेक केयर अबाउट द थिंग्स। वहाँ पे BA का कोई उतना रोल नहीं होता है, 90% वही लोग करते हैं।
Once the development is completed, then we will move towards the next part that is known as the testing. अब in testing हमारे पास there are different types of testings are there, like unit testing, integration testing, regression testing, UAT testing, black box, जो भी दुनिया भर की टेस्टिंग है सारी इसमें आ जाएंगी, है ना. So BA is take care about the UAT testing. UAT testing. अब यहाँ पे भी in testing part there is also number of documents are there, like test case document, test scenarios, test cases, UAT documents. ठीक है, तो वो कैसे कैसे सेटअप करना है, BA is responsible, है ना. BA is responsible to create the test scenarios and on the behalf of that test scenarios जो QA की टीम रहेगा, जिसको हम लोग जनरली टेस्टर्स ही बोलते हैं, जो क्वालिटी एनालिस्ट रहेंगे, they will take care or create the test cases document on the behalf of test scenarios given by the business analyst. ठीक है, एक बार टेस्टिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, UAT कंप्लीट हो, UAT इज द फाइनल टेस्टिंग जो BA करेगा बैठ के, है ना. BA करेगा भी करवाएगा भी. ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि हम लोग एक फीचर डेवलप कर रहे हैं, द नेम ऑफ द फीचर इज रिलेटेड टू द लीव मैनेजमेंट सिस्टम. सो लीव मैनेजमेंट सिस्टम कौन यूज करता है कंपनी के अंदर? नॉट लीव मैनेजमेंट सिस्टम, खाली लीव फीचर कौन यूज करता है? HR यूज करती है, एम्प्लॉय यूज करते हैं, मैनेजर यूज करते हैं. तो अगर हम लोग लीव मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, so when we talked about the UAT of the leave management system, then business analyst take care about or to create the UAT environment where कंपनी के अंदर से कुछ स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं जिनके लिए वो फीचर है, वो वहां पे उसको टेस्ट करेंगे. टेस्ट करने के बाद जो रिकॉर्ड्स हैं वो BA क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा रिकॉर्ड को, एंड द रिकॉर्ड इज पॉजिटिव तो ठीक है, बढ़िया है, नेगेटिव है तो वो दोबारा जो है वो डेवलपमेंट की साइड दोबारा चले जाएंगे. तो टेस्टिंग में हमारे पास ये होता है. टेस्टिंग के बाद क्या होगा? डिप्लॉयमेंट, है ना. डिप्लॉयमेंट में क्या होगा भाई, ये है आपका फीचर था, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने करी एंड ये फीचर आपका बन के तैयार हो गया, अब उसको आप दे दो फीचर को. ठीक है, डिप्लॉयमेंट हो गया. प्री सेल्स BA का काम खत्म हो चुका है. ठीक है, नाउ मेंटेनेंस चलेगा. Is there any मतलब documentation in deployment end of the project? हमारे रिलीज डॉक्यूमेंट, अच्छा रिलीज डॉक्यूमेंट रहते हैं. ठीक है, तो रिलीज डॉक्यूमेंट जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो टेक्निकल कंटेंट राइटर्स हैं वो भी बनाते हैं और BA भी बनाता है और डेवलपमेंट टीम भी बनाती है. ये कोई ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द रिलीज डॉक्यूमेंट. हाँ, जो डॉक्यूमेंट है वो BA का ही पार्ट है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी. ठीक है, तो टेक्निकल कंटेंट राइटर होते हैं वो रिलीज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या फिर जो QA है, जो QA है, सीनियर QA वगैरह, वो रिलीज डॉक्यूमेंट को रिलीज करते हैं. ठीक है, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस में आकाश, मेरा एक डाउट था प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स को लेके. इन अ ब्रॉडर सेंस इफ यू कुड एक्सप्लेन कि जैसे हम कोई रेज्यूमे में प्रोजेक्ट दिखाएंगे और हम कंपनीज में इंटरव्यू देना चालू करेंगे, और ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन होता है क्या? दे डेफिनेटली नीड समबडी फ्रॉम प्री सेल्स या तो पोस्ट सेल्स, या तो हम इंटरव्यू देते हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, एंड व्हाट वी गाइस नीड टू से? 90% प्री सेल्स वाले बिजनेस एनालिस्ट ही देखे जाते हैं. आप रिज्यूमे में ऐसा कुछ मत लिखो प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स, नो नीड. आप सीधा BA लिखो. ठीक है, HR विल टेक केयर ओनली अबाउट द डोमेन, ओनली अबाउट द एजाइल मेथोडोलॉजी. अगर उसको पता है तो सही है, अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, और कुछ टेक्निकल स्किल्स लाइक SQL वगैरह पता है तो और अच्छा है. दैट्स ओके. Okay, but I have a question. Yes. प्री सेल्स वाले, आई मीन माय क्वेश्चन वाज कि जो 90% ऑफ BA होते हैं, आई मीन वो पोस्ट सेल्स वाला काम ज्यादा करते हैं, राइट? नॉट द प्री सेल्स. नहीं, देखो, पहली बात तो पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट किसी भी छोटी कंपनी में होगा ही नहीं. ओके, ठीक है, जहाँ पे 1000 एम्प्लॉय भी होंगे वहां भी नहीं होगा पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट. वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही टेक केयर कर लेते हैं सारी चीजें. यहाँ पे मैं वही बताने वाला था अभी कि मेंटेनेंस के बाद किसका काम स्टार्ट हो जाता है. तो अगर कंपनी थोड़ा सा छोटा है तो वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर विल टेक केयर अबाउट द बग, क्योंकि पोस्ट सेल्स का काम ही क्या है? पोस्ट सेल का काम ये है बार बार फीडबैक लेना. अगर कोई नए फीचर या फिर कुछ XYZ है प्रोडक्ट में
या फिर अगर आप प्रोडक्ट क्लियर कर रहे हो तो वो उसको देना, यानी फॉलो अप्स लेना, कहने का मतलब ये है। ओके प्रॉपर चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सारे काम पोस्ट सेल्स बिजनेस एनालिस्ट के ही होते हैं। कोई बग आ रहा है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल लाइक जीरा, monday.com, ट्रेलो, ठीक है। राइट ओके वहां पे फिर पोस्ट सेल्स भी ये आता है। तो ये सारे काम छोटी जो कंपनीज होती हैं, जो मॉडरेट लेवल की कंपनी होती है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ही हैंडल कर लेते हैं। हाँ, जहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिकली है कि नहीं इसके लिए मुझे यही एम्प्लॉय चाहिए, जैसे एमएनसी कंपनी या फिर कुछ हो गया, ठीक है, तो वहां पे वो चीज होती है, वहां पे फिर स्पेसिफाइड चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें जो है वो सीखेंगे। सीखने के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेल्स फोर्स बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। वहां पे हम लोग सारी की सारी चीजें, क्योंकि सेल्स फोर्स यू ऑलरेडी नो दैट कि बहुत बड़ा हमारे पास सीआरएम प्लेटफॉर्म है, तो जनरली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स फोर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक सीआरएम, और बीए वहां पे क्या करेगा, है ना। तो होती यही सारी चीजें हैं, बट वो एक चीज में क्या है, वो पूरा डिफरेंट पाथ हो जाता है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चीजें जो है वो क्लाउड से रिलेटेड होती है। हम लोग क्लाउड की चीजें देखेंगे वहां पे कि एज ए कंपनी वो सारा का सारा डेटा जो है, लेट सपोज दैट कि एबीसी इज ए कंपनी, है ना। अब एबीसी इज ए कंपनी, तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो दो पार्ट में, यानी उसके पास दो ही ऑप्शन है ट्रैक करने के, या तो वो एक्सेल शीट में कर रहा होगा या फिर वो किसी क्लाउड पे कर रहा होगा। तो यही दो पार्ट होते हैं, है ना। तो इस क्लाउड को समझने के लिए पूरा का पूरा जो सेल्स फोर्स है उसको समझने के, बहुत वास्ट सेल्स फोर्स होता है जनरली, बट हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे चीजें होती है सेल्स फोर्स के अंदर, लाइक अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। देन उसके बाद जो फ्लोज वगैरह होते हैं, ऑटोमेशन फ्लोज वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई जो सेल्स टीम है उसके पास अगर कोई लीड आई है, देन हाउ द सेल्स टीम मेंबर इज able to edit or able to update the data in the Salesforce and all। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। देन उसके बाद जब ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एसक्यूएल, हमारा एसक्यूएल बेसिक्स। तो इस तरीके से हम लोग सारी की सारी चीजें धीरे 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 वन बाय वन हम लोग करेंगे। एज आई एम टेकिंग द प्रैक्टिकल सेशंस, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि जो भी आप बोलो या फिर इंटरव्यू में की मैं बात कर रहा हूँ, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैनर में आनी चाहिए, जरूरी है। एक एक चीज कंपनी के अंदर व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द टेस्टिंग पार्ट। तो ये चीजें आपको बिल्कुल फुल एंड फाइनल पता होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी दैट्स ओके, नो इश्यूज, बट आपको अगर इंटरव्यू की साइड से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मिक्स द थ्योरी इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट, कि हाँ मैंने ये करा है, ताकि वो फिर ये ना समझे कि यार ये बीए जो है वो सिर्फ तो थ्योरी थ्योरी बता रहा है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा आज इस मीटिंग में हमने यही सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं कि एक्चुअल में एक बीए की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, क्या चीजें करेगा। सो दिस इज द रोड मैप कि हम लोग चलने कैसे वाले हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। सर सो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, देन वी हैव टू गिव देम along with the examples or maybe a tool or something that we are using during that, so Yes, that yes, वो yes. उनको भी क्रिस्टल क्लियर हो और हमारे साथ हाँ, भी ऐसा हो कि हम बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाए। करेक्ट करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इन बीए, बीए इज टेक केयर अबाउट द यूजर स्टोरीज। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यूजर स्टोरी क्या होती है, हर कोई इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, व्हाट इज यूजर स्टोरी। अब पूछेगा तो वो ऐसे कि ही और शी वांट ओनली द थ्योरेटिकल आंसर, ओनली वन लाइन, बट उसके पीछे वो क्या जानेगा कि आप लिखते कैसे हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू टेल टू हिम और हर व्हाट इज यूजर स्टोरी इन वन लाइन, एंड आफ्टर दैट इन द रीसेंट प्रोजेक्ट आप उसके बारे में बताओगे, आई एम वर्किंग ऑन द लाइक लीव मैनेजमेंट सिस्टम, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजर स्टोरी ऑफ द लीव मैनेजमेंट सिस्टम, देन एज ए यूजर आई वांट, इस तरीके से वो चीजें होंगी। और ये भी साथ में बोल दो कि इफ यू वांट टू शेयर माय स्क्रीन, देन आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड आल्सो राइट द यूजर स्टोरी अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मेट, तो उसको और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा वहां पे, ठीक है।
Any question as of now? Otherwise, we can wrap Yes, up this Akash, session. I do have one question. Yes, Lakan. Yeah, Akash, so in most of the cases, I mean, I have gone through too many like interview questions over the Google and AI tools like ChatGPT. The most common question is like they ask the difference between the business analyst, project manager, and product manager. Mainly the focus on like the roles and responsibilities. So can you please confirm what kind of the difference they have? Okay. So you want what is the difference between? Project manager, product manager, and business analyst. ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ओनर की है, PO. So the PO is basically take care about the product vision in the company. Just like I told you that there are uh, 3 types of companies are available जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होती है या फिर सर्विस बेस्ड होती है या फिर हाइब्रिड मॉडल कंपनी होती है. तो प्रोडक्ट बेस के अंदर जनरली प्रोडक्ट ओनर जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है ना, उस कंपनी के प्रोडक्ट का विजन को डिफाइन करता है जनरली. ठीक है, उसके बाद हम इस क्रम में भी देखेंगे कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होती है. तो वो जो हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग है उसको मेंटेन करके रखता है. प्रोडक्ट बैकलॉग इज रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ फीचर्स इन द प्रोडक्ट. ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट उसको प्रायोरिटाइज करता है. ठीक है, प्रॉपर उसको प्रायोरिटाइज करता है. सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द की स्किल ऑफ ए प्रोडक्ट ओनर, तो उसको सीधी सादी बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर वे में, कॉम्पिटिटर एनालिसिस नॉलेज होनी चाहिए, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन ऑब्वियस सी बात है, और डिसीजन मेकिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो है ना, इन ए फूड डिलीवरी ऐप. तो वहां पे जो प्रोडक्ट ओनर होगा दैट डिसाइड दैट रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज यूजर उसको डिमांड कर रहे हैं. तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट कंपनी का चल रहा है, तो वहां पे डिमांड क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर्स एक्सेप्टेशंस या फिर यूजर की जो जरूरत है उनके बिहाफ पे वो फीचर बनाएगा, उसका विजन देखेगा, उसको डेवलपमेंट में लाएगा. सो दिस इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ओनर. यहीं पे अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करता हूँ, सो प्रोजेक्ट मैनेजर इज जनरली टेक केयर अबाउट द मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज, मेकिंग द शेड्यूल्स. ठीक है, प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, अगर कोई रोड ब्लॉकर आ रहा है टीम की साइड में तो उसको रिमूव करेगा. ठीक है, जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे और रिस्क मैनेजमेंट की जो रिपोर्टिंग्स वगैरह है वो देगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फूड डिलीवरी ऐप की ही बात कर रहा हूँ, तो इन द सेम फूड डिलीवरी ऐप द प्रोजेक्ट मैनेजर विल इंश्योर दैट कि जो हमारे डेवलपर है, जो हमारे टेस्टर्स हैं, जो हमारे डिजाइनर हैं, क्या उन्होंने सारा काम ठीक से कर लिया है या फिर नहीं करा है विद इन द स्प्रिंट एज प्रॉमिस्ड और नॉट. ठीक है, मूविंग So फॉरवर्ड. do you mean like product owner or product owner and product manager are same? नो, डिफरेंट है ना. That means that is why I'm asking. Like I asked the difference डिफरेंट कैसे between है वही मैं बोल रहा हूँ. project manager, product फूड manager, डिलीवरी and ऐप के BA. अंदर प्रोडक्ट ओनर जो है वो उस फीचर को देखेगा कि ये फीचर मुझे चाहिए, इस फीचर के बिहाफ पे मुझे चीजें करनी है. वो फीचर बनाएगा कौन, उसकी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर लेगा. Okay. Okay. Sir, I'm just making a wild guess on product owner. Like the title says, like sometimes he is the owner of the product. Like he's managing or maybe he's the real time owner, checking that is it working, the requirements have been fulfilled or not, is it working in a correct way? That's the एक लाइन thing. में बताऊं, प्रोडक्ट ओनर ने सपना देखा, उस सपने को पूरा किसने करा, प्रोजेक्ट मैनेजर ने करा अपनी टीम के साथ मिलकर. दैट इज द मेन डिफरेंस. ठीक है, Okay. अब बीए का मैंने आपको बता दिया है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें बीए हमारा करेगा ही करेगा. ठीक है, रेस्टोरेंट के ओनर्स के पास जाएगा, कस्टमर के पास देखेगा, डिलीवरी पार्टनर्स के पास जाएगा, सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा, गैदर करने के बाद क्लियर वे में पीओ के साथ बैठेगा, वो सारी चीजें करेगा. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस. ठीक है, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.